Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and this is lesson 3 of Flamingo book meant for the students of class 12. 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी फ्लैमिंगो बुक का ये लेसन 3 लेके आया हूँ, डीप वाटर. आई एम टेकिंग इन दिस लेसन मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट ऑफ डीप वाटर. This lesson has been written by William Douglas. He was born in 1898 and died in 1980. The theme of the chapter is how the author overpowered the fear of water. Author ने पानी के प्रति अपने भय पे कैसे विजय पाई. How he overpowered the fear of water. This theme has been taken up in this lesson. In this lesson, the writer focuses on the theme how he overpowered the fear of water. Main points of the lesson. The author was 10 or 11 years old when he wanted to learn swimming. He did not want to learn swimming in the river Yakima because his mother had already told him about the risks of being drowned in it. Author 10 या 12 वर्ष के थे जब वो स्विमिंग सीखना चाहते थे. He had decided to learn how to swim. He didn't want to learn swimming in the river Yakima because his mother had already told him. उनकी माँ ने याकीमा रिवर जो वहाँ से होके गुजरता था, तो उनकी माँ ने सदैव ये कहा, उन्हें बार बार कहा कि याकीमा रिवर इज ट्रेचरस. याकीमा रिवर धोखेबाज है, उसमें आप स्विमिंग नहीं करोगे क्योंकि याकीमा रिवर में डूब जाने के खतरे हैं. याकीमा रिवर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ट्रेचरस, अ चीटर बाय हिज मदर. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू गो टू the river Yakima for swimming. Then he decided to join the YMCA pool. तो उन्होंने YMCA pool को ज्वाइन करने का निर्णय किया. YMCA pool stands for Young Men Christian Association. Young Men Christian Association. It was safe for the author to learn swimming. Why did he join this YMCA pool? Because it was safe for the author to learn swimming. Author के लिए स्विमिंग सीखना यहाँ पे सुरक्षित था, सेफ था. It was 2 to 3 feet deep at one end and while it was 9 feet deep at the other end. एक एंड से वो जो स्लोप था वो ऐसे था, एकदम ग्रेजुअल था. और अगर हम ये मान के चलते हैं ये तल है उसका, तो इट वाज लाइक दैट. ये इधर से 2 to 3, 2 से 3 फीट यहाँ था चैलो एंड, और इधर आके ये 9 फीट गहरा हो जाता था. तो ये इट वाज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट फॉर लर्नर्स क्योंकि स्लोप एकदम ढलान वाला था, ये एकदम अब्रप्ट नहीं था. इट वाज 2 to 3 feet deep at one end while it was 9 feet deep at the other end. The slope was from one end to the other was gradual in the pond. और ये जो स्लोप था, this was very gradual, स्लो था काफी, एकदम नहीं था. It was not steep, सीधा नहीं था. That's why he wanted to learn swimming in the pond. इसलिए वो YMCA pond में learn करना चाह रहे थे. The author tells us about a previous experience when he started fearing water. Now we come to know about his experiences when the fear of water was born into his mind. जब नरेटर के दिमाग में पानी के प्रति भय ने जन्म लिया था, उस इवेंट का यहाँ उस इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं. The author is describing his previous experience when he had started fearing from water. He was 3 or 4 years old. उस वक्त वो 3 या 4 वर्ष के थे उम्र में. One day his father took him to the beach in California. कैलिफोर्निया में वो बीच पे गए, समुद्री तट पे गए. Both of them stood in the waves. दोनों लहरों के बीच में खड़े थे. लहरें जैसे बीच होता है, इधर लहरें आ रही हैं जा रही हैं, तो इधर कहीं खड़े थे वो. Both of them stood in the waves. The author was clinging to his father. और जो लड़का है 3 या 4 साल का था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो अपने फादर
की बाजुओं से चिपटा हुआ था, लटका हुआ था। क्लिंग, चिपटना होता है। ही वॉज हैंगिंग on one of his arms. Then a powerful wave came and overpowered both of them. जैसे वो खड़े थे लहरों में, यहाँ पे पानी आ रहा था, जा रहा था, ऐसे आती वेव वापस चली जाती। Then a powerful wave came and swept over them, both of them. उनको दोनों को swept कर गई, दोनों को अपने लपेटे में ले लिया और अपने पानी के बीच में ले लिया। He was buried in water and his breath was almost gone. और जो नरेटर थे छोटी उम्र में थे तो वो एकदम डर गए, पानी में बिल्कुल डूब से ही गए थे और उनका जो सांस था वो एकदम टूट गया था पानी में। Although his father was laughing at the incident, yet the fear of water had taken birth in the author's mind. यद्यपि फादर इस घटना पे हंस रहे थे because his son was safe. उनका बेटा उनके पास था, सुरक्षित था। Therefore in a light mood. और ऑथर छोटा था, बहुत कम उम्र थी, तो सहमा हुआ था, डरा हुआ था। यद्यपि फादर उसे, अपने बेटे को ठीक महसूस कराने के लिए हंस रहे थे। The author did not want to show his thin legs. अब आगे की घटना शुरू होती है। अब YMCA पूल की घटनाएं शुरू होती हैं। He took a pair of water wings भी ले लिए उन्होंने और YMCA पूल पे जाने लगे। But in the beginning he was somewhat feeling shy of showing his thin legs to other guys. तो अपनी पतली टांगे वो दूसरों को दिखाना नहीं चाहते थे। शुरुआत में उन्हें शर्म आ रही थी। He was feeling somewhat shy. But soon he overpowered this feeling of inferiority complex or his shyness. जल्दी ही अपनी शाइनेस पे वो काबू पा गए। He had a pair of water wings with him, और water wings उसके साथ थे, बाजुओं के साथ वो लगा लेते थे। For some moments, कुछ पलों के लिए the fear of childhood came in his mind. जब उन्होंने अपने पाँव उसमें पानी में उतारे तो कुछ देर के लिए जो भय था, जो कैलिफोर्निया बीच पे उनके दिल में पैदा हुआ था, that returned. वो भय वापस आ गया लौट के। But soon he gathered courage. परंतु शीघ्र ही उन्होंने हौसला बटोरा, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, एकत्रित किया। He saw other boys swimming there. वहाँ पे दूसरे लड़कों को तैरते हुए देखा। He also started paddling in water by imitating other boys. और दूसरे लड़कों को इमिटेट करके, उनकी नकल करके इन्होंने भी पैडलिंग शुरू कर दी, पानी में अपनी बाजुएं, टांगे मारनी शुरू कर दी। He did so for 2 or 3 times. 2 या 3 बार उन्होंने ऐसा किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन को आए वो ये काम करते रहे एंड ही वॉज बिगिनिंग टू फील ईज इन वाटर व्हेन एन एक्सीडेंट अकर्ड विद हिम। और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करने जा रहे थे। ही वॉज ऑलमोस्ट कंफर्टेबल नाउ इन YMCA पूल व्हेन सम मिसएडवेंचर हैपेंड विद हिम। एक दुर्घटना उनके साथ हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। What was that misadventure that took place at YMCA pool? Once he was alone at the pool. एक बार वो पूल पे earlier चले गए, before time चले गए, तो अकेले थे। He was afraid of entering the water. पानी में अकेले एंटर करने से डर रहे थे। So he sat at its bank. इसलिए स्विमिंग पूल के वो किनारे पे बैठ गए and he was waiting for others to come. The water was still means motionless. पानी बिल्कुल स्थिर था and the tiles at the bottom were clearly visible to him. जो YMCA पूल था उसकी टाइल्स बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी, बिल्कुल जैसे नीला पानी होता है और नीचे सफ़ेद टाइल्स नज़र आ रही थी। तो ये टाइल्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी। पानी, हालांकि पानी पूरा भरा हुआ था, ब्लू पानी था और ये वाइट टाइल्स नीचे नजर आ रही थी। The water was still and the tiles at the bottom were clearly visible to him. He saw a boy of 18. तो थोड़ी देर बाद एक 18 वर्ष के लड़के को उसने अपनी तरफ आते हुए देखा। He had thick hair on his chest. He said a few words to the writer. नरेटर को, विलियम डगलस को उन्होंने कुछ शब्द कहे। यहाँ पे नरेटर ही राइटर है, राइटर ही नरेटर है। कई बार ऐसा होता है कि जो राइटर होता है वो नरेटर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन
द लास्ट लेसन, जो पहला लेसन है आपका, रिटन बाय अल्फोंसो डॉयडे, उसमें अल्फोंसो डॉयडे इज नॉट द नरेटर, नरेटर इज फ्रेंज, फ्रेंज नाम का लड़का नरेटर है, परंतु यहाँ पे राइटर ही नरेटर है। ही पिक्ड हिम अप एंड थ्रू टुवर्ड्स द डीप एंड ऑफ द पॉन्ड। उन्होंने कुछ शब्द कहे विलियम डगलस को, जो छोटी उम्र में थे, 11 ईयर्स के थे जब उन्होंने ये YMCA पूल ज्वाइन कर लिया था। तो उनको उठा लिया और जो डीप एंड था, 9 फीट डीप था जहाँ पे, उधर फेंक के मारा। He was not ready for such a sudden throw and the narrator was not mentally prepared for such unusual incident. ऐसी unusual incident के लिए वो तैयार नहीं थे mentally. He went down to the bottom of the pond in sitting posture. जब वो नीचे जा रहे थे पूल में, तो नीचे की तरफ वो सिटिंग पोस्चर में ही जा रहे थे, बैठे हुए, जैसे बैठे हुए और सिटिंग पोस्चर में जा रहे थे। और बट ही डिसाइडेड टू हिट द बॉटम विद ए बिग फोर्स टू स्प्रिंग अप एट द सरफेस ऑफ द वाटर। जाते जाते उन्होंने एक दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बना ली कि जब नीचे जाएंगे तो टोज होंगी उनकी, पैरों के पंजे होंगे, उससे वो एकदम पूरी फोर्स के साथ स्प्रिंग अप करेंगे और ऊपर आके तैरते हुए कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। ये उन्होंने सोचा हुआ था कि एकदम जंप करेंगे तो आसानी से ऊपर आ जाएंगे और तैरते हुए किनारे पे चले जाएंगे। He was not ready for such a sudden throw. He went down to the bottom of the pond, but he decided to hit the bottom with a big force to spring up at the surface of water. The water of the pond was 9 feet deep. जो पानी था 9 फुट था डीपर एंड पे। As he touched the bottom of the pond, जैसे ही उन्होंने बॉटम को टच किया, he tried to spring up with full might. पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ उन्होंने स्प्रिंग अप करने की कोशिश करी, but the pressure of the water did not allow him to come up at once at water surface. और क्योंकि पानी का प्रेशर होता है, पूरी शीट थी यहाँ पानी की, उसने ऑथर को ऊपर एकदम आने नहीं दिया, प्रेशर ने उन्हें स्लो कर दिया ऊपर आने में। He was coming up slowly. He felt as if his lungs would burst. धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे थे, ऐसा लग रहा था उनके लंग्स फूट जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। He opened his eyes. पानी में ही आंखें खोली उन्होंने, but he could see only water. येलोइश टिंज वाला वाटर दिखाई दे रहा था, पीलक वाला पानी उन्हें दिखाई दे रहा था। In panic he wanted to cry. डर में वो चीख उनके मुंह से निकलना चाह रही थी, but it would not come out of his mouth. चीख उनके मुंह से बाहर नहीं आ रही थी। He was suffocating. उस पानी में वो सफोकेट कर रहे थे, क्योंकि जो पूल का वाटर था वो भी उनके पेट में, स्टमक में चला गया था। He had lost his breath. और सांस उनका फूल गया था। Then his nose came up, but not his mouth. फिर उनका नाक बाहर आया, मुंह अभी पानी के नीचे ही है, मुंह बाहर नहीं आया, सिर्फ नाक उनका बाहर आया, but not his mouth. He tried to bring his legs up to make a jump upward. और टांगों को ऊपर की तरफ उन्होंने कोशिश करी, जंप ऊपर की तरफ लगाने के लिए कि ऊपर जंप लगा के आऊंगा, but a force was pulling him back towards the bottom of the pool again. परंतु जो वाटर का प्रेशर था दोबारा उनकी टांगों को नीचे की तरफ खींच रहा था। His lungs were aching. उनके फेफड़े पेन कर रहे थे, and he was going down slowly. और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाने लगे। He was hopeless of his survival now. उन्होंने जीवित रहने की उम्मीद छोड़ दी। Everything was dark before his eyes. A terror of death gripped his mind. ये 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार भी जब हुआ तो जो मौत का भय होता है उनके दिमाग में आ गया, मौत के भय ने उन्हें जकड़ लिया। At last he felt the tiles under his feet. और फिर टाइल्स उन्हें महसूस हुई यहाँ पे। He made a last effort to save himself. और आखिरी जतन किया उन्होंने, पैरों से पूरी माइट लगाई और ऊपर की तरफ आने की चेष्टा की। He tried to spring up, but the pressure of water overpowered him. पानी का प्रेशर उनको दबा रहा था नीचे की तरफ। He could not spring up नहीं कर पाए वो। His arms and legs were motionless. बाजू और टांगे बिल्कुल उनकी पैरालाइज्ड होगी,
हरकत उनमें नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी। बट स्ट्रेंजली ही वॉज कमिंग अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, परंतु अद्भुत रूप से वो ऊपर की तरफ ही आ रहे थे। देयर वॉज लाइट एंड हिज नोज एंड माउथ वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ वाटर। ये सेकंड टाइम था और उनकी आंखें और उनका नाक बाहर आ गया बिल्कुल पानी से, माउथ भी उनका बाहर आ गया। Then the water took him down for the third time. फिर पानी ने तीसरी बार प्रेशर डाला, नीचे की तरफ ले गया। He took a long breath to suck in oxygen. और उन्होंने जब वो थोड़ी देर के लिए ऊपर आए थे पूरी जोर के साथ सांस लिया था ताकि ऑक्सीजन मैक्सिमम अपने अंदर ले जाएं। But water went in his stomach. उसके साथ पानी भी उनके पेट में चला गया। He had no strength to struggle for life. अब जीवन के लिए संघर्ष करने की क्षमता, एनर्जी उनमें नहीं बची। Now he left everything to the Almighty God. अब ऊपर वाले पे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। It was quite, जब उन्होंने ऊपर वाले पे छोड़ा तो एकदम मन को शांति मिली, रिलैक्सेशन मिली, पीस महसूस की दिमाग में। There was no panic. अब कोई डर नहीं था। ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि अगर सांस उसके इतने ही थे तो ऊपर वाले की मर्जी। मौत का भय नहीं था। He became unconscious. और इसके बाद वो अचेतन हो गए, मूर्छित हो गए। When he came to senses, जब वो होश में आए, he found himself lying on his stomach at the bank of the pond. उन्होंने अपने आप को औंधे मुंह किनारे पे लेटा हुआ पाया और he was vomiting. मुंह में से पानी निकल रहा था, वोमिट कर रहे थे, वो प्रेशर स्टमक पे अप्लाई कर रहे थे उसके। The boy who had thrown him was saying, जिस लड़के ने उन्हें फेंका था वो कह रहा था, आई वॉज फूलिंग, मैं तो आई वॉज जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था। और दूसरा व्यक्ति कह रहा था, द किड नियरली डाइड, बच्चा तो मर गया होता अगर इसे ना बचाया जाता। ही टुक सेवरल आवर्स टू रिकवर, और कई घंटे उन्हें रिकवर करने में लगे। देन ही वॉकड होम, फिर वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ गए। ही वॉज वीक एंड हिज लेग्स वर ट्रम्बलिंग, कमजोर थे और उनकी टांगे कांप रही थी। He shook and cried when he lay on the bed. और जब वो बिस्तर पे लेटे तो कंपकपी चढ़ रही थी, डर रहे थे, वो ट्रम्बल कर रहे थे। और at night he could not eat anything. रात को वो कुछ भी नहीं खा पाए। And for many days the terrible fear gripped his mind. और जो भयानक भय था, जो ट्रॉमा था, वो दिमाग में उनके चलता रहा। He started fearing water. और पानी से डरने लगे वो। He didn't go to that pond again. और उसके बाद वो YMCA पूल पे नहीं गए दोबारा। And dear students, this is the end of the part 1 video 1 हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। I hope you must have liked and understood the main points of this text, and I hope you will appreciate my effort, and do not forget to subscribe to my channel. Keep watching, liking and sharing my videos. Thank you very much.